Today we will start chapter 11, that is midpoint theorem for class 9th for ICSE from ML अग्रवाल। मैंने पीडीएफ बच्चे ग्रुप में भेज दिया है। मतलब जिनको ML अग्रवाल नहीं है वो उस पीडीएफ में से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द स्टेटमेंट। अ यस, one more student, Kabir, is there from Dehradun. Hello, Kabir. Hello, Kabir. Hello, sir. Hello, sir. Good evening, sir. Good evening. On your video, Um, Actually, I'm facing some issues with my webcam. I'm trying to fix it. Just give me some time. Currently, I'm using it with my mobile phone, and the camera would not be appropriately. okay, The quality would not be good. okay. Just give me some time, and I'll figure it out. So we will start chapter 11, midpoint theorem from ML Agrawal. So what is midpoint theorem? First of all, we have to know the statement. अगर आपको स्टेटमेंट नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर सकते। The statement is a line segment joining midpoint of any two sides of a triangle is always parallel to third side and equals to half of it, equals to half of it. How? एक ट्रायंगल ABC, line segment joining midpoint of any two sides AB and AC, मैंने इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of AC and PQ is here the line. This is a line segment now. This line segment here is PQ. Here PQ is the line segment. किसको ज्वाइन कर रहा है? मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड AB एंड AC इज पैरेलल टू थर्ड साइड के पैरेलल एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो अब वहां एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम, 1 मार्क का स्टेटमेंट एंड 3 मार्क का प्रूफ। तो प्रूफ भी आपको इस थ्योरम का करना है, समझ गए? वो मैं करवा रहा हूं आपको। गिवन इन ट्रायंगल एबीसी मिड पॉइंट्स आर गिवन, दैट मींस एपी इज इक्वल टू सॉरी बीपी एंड AQ is equal to QC. These two things are given. To prove, what we have to prove? What we have to prove? We have to prove this line segment parallel to third side. Third side, yes, Egna. Which is the third side here? So BC. Because P and Q are the midpoint of AB and AC. Third side remain is BC. Then PQ is parallel to BC and PQ is half of BC. These two things we have to prove. ये चीजें प्रूव करनी है। तो प्रूफ हियर इज, प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन आएगा, कंस्ट्रक्शन के बिना ये प्रूव नहीं होगा।
construction produce PQ, produce or extend PQ up to R such that QR is equal to PQ. QR is equal to PQ. This one. Join CR. Join CR. CR को join करो. So first of all, Kabir, have you done the chapter congruent triangles? No, sir, we have not done it yet. You have not done yet. Okay. So in seventh and eighth class, you have done some topic that is SSS, SAS, ASA. In seventh and eighth, not much focus was laid in geometry, particularly, and in triangles. It was a combined chapter, so we could not focus on a thing. Okay. No issue. Here, these two triangles in triangle APQ and CQR. AQ is equal to CQ, PQ is equal to QR. This is given, and this angle is equal to this angle. In triangles AQP and yes, Egna, the second triangle name is, Sir, CQR. we have to write down it order. Two cut, three cut, three cut. First triangle AQP, I have write down as AQP. We are going from A to Q, then Q to P. मतलब first two cut, then three cut are coming. यहाँ पे भी two cut, then three cut. That is CQR. AQ, first second, CQ. That is given. Midpoint is given. Here angle AQP becomes equal to angle CQR. Yes, Kabir, do you know these two angles? Yes, I understood. No. Why these two angles are equal? What is the reason here? Yeah, those two angles are equal because of the vertex, if I'm not wrong. Because of vertex, but the reason is vertically opposite. We have to write Vertically down here opposite, right? vertically opposite angles. And then PQ is equal to QR. PQ second third is QR. This is, we have done construction. So triangles, Smiti, the triangles are congruent by which rule? Sir, the triangles are congruent by SAS. Very good. SAS. टू साइड देखो, एक ट्रायंगल को छुपा लिया, एक ट्रायंगल में टू साइड इंक्लूडिंग एंगल इज यूज्ड, देन एस rule the triangles are congruent. So here when triangles are congruent, remaining parts are equal by CPCT, corresponding parts of congruent triangle. So here AP becomes equal to CR, AP first third, CR, CPCT. Yes or no? AP is equal to CR, and one more thing, this angle is equal to this angle. डबल आर्क लगा दिया मैंने, एंगल 1 एंड एंगल 2 मार्क कर देता हूं. मैंने एक्चुअल में फिगर फिर से बना रहा हूं नीचे, क्योंकि बार बार मुझे ऊपर जाना पड़ रहा है, नहीं तो सॉरी, ये नहीं है. ए पी क्यू आर बी सी, दिस side is equal to this side, this is equal to this is equal to this. ये दोनों ट्रायंगल्स मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिए, ए क्यू पी एंड सी क्यू आर. Then this angle AP is equal to CR by CPCT. Also, this angle is equal to this angle. I can mark this as angle 1 and this as angle 2. Angle 1 is equal to angle 2. This is also by CPCT, corresponding parts of congruent triangles. But 1 and 2, which are these two angles? Yes, Srishti.
1 and 2, Straight interior angle. but these are Z shape बन रहा है, but these are alternate interior angles. Therefore, AB is parallel to CR, or we can say AP is parallel to CR. A, AP भी लिख सकते हैं, BP भी लिख सकते हैं, BP लिख देते हैं, पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन। देखो पूरी लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इतना पार्ट, नीचे वाला पार्ट भी इसके पैरेलल होगा। रीजन, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस लिखना है लिख दो, नहीं लिखना ना लिखो, यहाँ और लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा। नाउ we have proved AP is equal, sorry, we have proved AP is equal to CR ना, but this is proved, but AP is given equal to BP, this one देखो given में मैंने लिखा हुआ है, AP is equal to BP, this is given, so therefore yes, uh, Prishti, what we get from these two equations? AP is equal to CR, but AP is also equal to BP. Then what we get from these two equations? Yes, Christy? CR is also equals to BP and Yes. all बस AP लिखने का जरूरत नहीं। अब मैंने और आधी फिगर कर दी, दिस वन, दिस पार्ट, ये दो बॉक्सेस जहां मैंने टिक लगा दी, BP is parallel to CR, एरो सिंबल रिप्रेजेंट पैरेलल, एरो सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? पैरेलल को, एंड आल्सो CR is equal to BP, CR is equal to BP, कट सिंबल शोज इक्वल, कट सिंबल किसको शो करता है? इक्वल को। अब इतनी लाइन इसके पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो एक प्रॉपर्टी है वो आपको रेक्टिलिनियर फिगर में आएगी। वी नो दैट इफ अ पेयर ऑफ opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को पूरा लिखने की बजाय ऐसे बॉक्स बना देते हैं, ट्रायंगल को हम ऐसे ट्रायंगल का सिंबल बना के दैट रिप्रेजेंट ट्रायंगल, तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल, दिस बॉक्स नॉट रिप्रेजेंट स्क्वायर, दिस सिंबल रिप्रेजेंट quadrilateral, then quadrilateral is also called parallelogram। अब पैरेललोग्राम देखो, एक पेयर अपोजिट साइड्स के, कबीर हाउ मेनी पेयर्स आर देयर इन क्वाड्रिलेटरल Of lines sides? in a rectangle, there are two pairs of opposite Rectangle, sides no, which are no, it is parallel. not a rectangle, I say quadrilateral, Kabir. Quadrilateral. If you are asking about parallel lines which are opposite in quadrilateral, No बच्चे, मैंने सिंपल एक क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर देयर इन ए क्वाड्रिलेटरल? uh, I don't have a bit knowledge about it because we have not you covered are it. you are your first day, that's why you are confused. Okay. Simple. Opposite means मेरे सामने, ठीक है? Here PR के opposite BC, that is the one pair of opposite side. BP and CR is the second pair of opposite side. There are only two pair of opposite sides. This and this adjacent, this and this adjacent, this and this adjacent, this and this. And adjacent sides के there are four pairs. Opposite sides के two pairs हैं और adjacent sides के four pairs. तो Just यहाँ wanted पे to ask a thing. yes, Like you told that we were talking about a quadrilateral, right? yes, And if we have mentioned that this in this particular figure, uh, P, B, and R, C are parallel and of same length, हाँ, parallel then and equal. yeah, parallel Parallel, and equal. And I see that there are four sides in this. And if
any pair. How many pairs? yeah, pairs we are talking about, but One pair, this opposite particular sides. figure P R C B, There are total 4 sides, but yeah, pair of opposite sides. This is the one pair, na? PB yeah, and CR. yeah, PR and BCR is the second pair. yeah, तो यहाँ पे a pair of opposite side is parallel and equal. Then quadrilateral, this quadrilateral. Second, अभी हमें कुछ नहीं पता जहाँ डॉट लगा दिया. We don't know this is parallel and equal or not. But अगर एक पेयर दोनों क्वाड्रिलेटरल का दोनों पेयर में से एक पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, देन इट इज आल्सो कॉल्ड पैरेललोग्राम. तो उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं. ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, आएगी हमें रेक्टेंगुलर फिगर में, यहां सिर्फ इसी में यूज होगी. उसके बाद तो ये साइड पी आर इज इक्वल टू बी सी एंड पी आर पैरेलल टू बी सी. पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो दोनों पेयर्स पैरेलल एंड इक्वल होंगे ना. इसका यूज करके हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया, तो दूसरा पेयर इक्वल एंड पैरेलल होगा. अब पी आर को बच्चे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस फिगर में आ जाओ. श्यान, यस सर. पी आर को बच्चे मैं क्या लिख सकता हूँ? सर BC. और वो तो मैंने लिख दिया, पी आर इज इक्वल टू बी सी. मैं पी आर को और क्या लिख सकते हैं? वो सर है वही AC प्लस QC. बच्चे ए सी यहाँ पे है, पी आर यहाँ पे है, 2 टाइम पी क्यू. वाई? Because total PR is divided into 2 equal parts. आपके पास 100 रुपीज हैं. There are 50 2 notes are there. दोनों का सम 100 बन रहा है. तो मैं 50 की फॉर्म में क्या लिखूंगा? 2 टाइम 50 लिखूंगा ना 100 को. यस सर. सेम हियर, अगर ये तो पी आर की लेंथ 100 है, सपोज कर रही है हम 100 है, देन दिस इज 50, दिस इज 50. तो इस पूरे को क्या लिख सकता हूं? इसका डबल या इसका डबल भी. मुझे ये चाहिए था, दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट डाउन दिस वन. So to PQ is equal to BC, and same here, PR is parallel to BC, then PQ is also parallel to BC. PQ from here we get BC upon 2, and 2 नीचे चला गया और यहां से PQ parallel to BC आ गया. समझ आ गया बच्चे? यस सर. मैं फिर से एक बार फिगर, ओनली फिगर्स. पहले तो मैं वो चीज समझाऊं जो हमने लास्ट में यूज की है. दिस इज अ कोऑर्डिनेटर. समिति, सृष्टि, इग्ना, Shyam, Kabir, you also. Here, total 4 sides are there. That are AB, BC, CD, and DA. How many pairs? How many pairs of opposite sides are there? यहाँ पे opposite sides के कितने पेयर हैं? सृष्टि, सर 4. बच्चे पेयर. 2. Which one? AB and DC and Yes. A. This and this. जहाँ single dot लगा दिया. AB and CD. First pair. Second pair. इसके अपोजिट ये है, तो दिस इज द सेकंड पेयर जहां टिक लगा दिए. दैट इज एडी एंड बीसी. और कोई पेयर है यहाँ पे? Just wanted to ask a thing. यस. Is it mentioned, like, firstly, am I visible? I've just switched on webcam. या आई नो. Yeah. Is it given in the question that this is either a rectangle? नो. Okay, so if it is not given in the question, then how can we assume that they are like parallel even? I have proved. Okay, but in 1 that is equal to 2. 1 is equal to 2. Yeah. But these are the alternate interior angle. Z shape बन रहा है.
So this line is parallel to this line. Okay. Okay. And this part I have also proved equal to this. Yes, we have proved this. I got it. Yes. Okay. तो एक बार मैं फिर से समझाऊंगा, वेट करो. Sure. हाँ, मैं एक ना बेसिक समझा रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल का थोड़ा सा. एडजेसेंट साइड्स. यस, कबीर आपको हिंदी समझ आ जाता है? Yes, sir. ओके. थोड़ा क्योंकि ना कुछ चीजें होती हैं जो हिंदी में ज्यादा बेटरली समझाई जा सकती I can completely understand, sir. है. क्या ए बी एंड बी सी वन पेयर ऑफ एडजेसेंट मतलब साथ साथ. बी सी एंड सी डी is the second pair. CD and DA is the third pair. DA and AB is the fourth pair. This one. Same way, angles. Opposite angles. How many pairs are there? Kabir. I think 2. Which one? A and C and B and D. Very. Same way, adjacent angles. Yes, Igna. How many pair of adjacent angles are there? So 4. Which one? Triangle A and B. Yes, B these are and the adjacent. A and B. Second is B and C. Third. C and D. Fourth. D and A. D and A. These are 4 pair of adjacent angles. Now, I am writing down the property that I have used in theorem. If only one pair of adjacent sides of a quadrilateral is equal as well as parallel, then that quadrilateral is also called parallelogram. Simple. A B C D. यहाँ पे कबीर इस क्वाड्रिलेटरल में कितने पेयर हैं अपोजिट साइड पे? So is it a parallelogram or a नहीं rectangle? बच्चे, क्वाड्रिलेटरल ओनली. Is it okay? Then I That are think the like, types of quadrilateral: parallelogram, rectangle, rhombus, square, kite. yeah. That are the types. So parallel, I All of think you that are. हाँ. 2 pairs would be parallel. पैरेलल कहाँ पूछा मैंने? मैंने सिर्फ ये पूछा है हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आती है. Okay, then 2 pairs of opposite lines. I would हाँ. particularly. लाइन नहीं बोलना, साइड बोलना. Yeah. क्वाड्रिलेटरल में साइड्स हैं या आर्म्स बोलते हैं. आर्म हम यूज नहीं करते. Okay. दैट आर द साइड्स. Okay. इफ ओनली वन पेयर, चाहे तो ये पेयर ले लो चाहे ये पेयर ले लो, दोनों में से कोई एक पेयर, दोनों नहीं एक. सपोज मैंने ये ले लिया, ये इसके पैरेलल भी है और ये इसके इक्वल भी है. दैट मीन्स डीसी पैरेलल टू ए बी एज वेल एज डीसी इक्वल टू ए बी. अब दूसरा पेयर तो पैरेलल इक्वल था नहीं. ओनली वन पेयर. दिस इज अ प्रॉपर्टी. ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड. चाहे ये भी पेयर हो सकता था, ये मैंने ये यूज किया है, आप ये भी यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे. तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है दैट इज अ पैरेललोग्राम. देन हम इसको पैरेललोग्राम लिख सकते हैं. देयरफॉर ABCD is a parallelogram. Sir, I completely got your point, but I just want to add a condition here. Yeah. That you mentioned that if AB and DC are parallel, then this would be termed as a parallelogram, right? No, and equal. Also equal, बच्चे. Okay. And equal देखो. as well. हाँ. Yeah. Then it is a parallel. Yeah. This is the reason. We have to and- write down this as the reason. Okay. If AD and BC are also parallel along with those two lines, then will it be considered a parallelogram? Yes.
ऑलरेडी बच्चे पैरेललोग्राम है तो ये तो पैरेलल हो ही गया ना, And they would इक्वल be भी हो also गया. equal length. Yeah. Okay. Okay. Understood. Then this is not the like criteria to differ between a parallelogram and a rectangle, right? Yeah, there is a difference between parallelogram and rectangle. In rectangle, each angle is 90, but here each angle is not 90. Yeah. Yeah. All rectangles are parallelograms, but all parallelograms are not rectangles. नीचे हमारे ना एक चैप्टर आएगा, जस्ट वेट. रेक्टिलिनियर फिगर 13 चैप्टर है, उसके अंदर ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज है. टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, how a parallelogram change into rectangle, how a rectangle change into rhombus, how a rhombus change into square, and so on. वहां पे सारा डिस्कस करेंगे. यहाँ पे सिर्फ बहुत लिमिटेड था, सिर्फ थ्योरम में यूज हो रहा है. दैट्स द रीजन आई विल एक्सप्लेन दिस वन. फिर से आ जाओ थ्योरम की स्टेटमेंट. अब मैं फिगर थोड़ा बड़ा बना रहा हूं. वन मोर थिंग, थ्योरम इज अ रटिफिकेशन. उसको आपने नोट डाउन करना ही करना है, लिखना है उसको, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप याद करना है. उसमें हम स्टेप्स को आगे पीछे नहीं कर सकते. यहां पे अब मैं सिर्फ हिंट लिखूंगा. पी इज द मिड पॉइंट. देखो कट, मैंने सिंगल कट लगा दिया, दैट मीन्स ए पी इज इक्वल टू पी पी. यहाँ पे मैंने डबल कट लगा दिया, दैट मीन्स ए क्यू इज इक्वल टू सी क्यू इज गिवन. या क्यू यहाँ पे डाल. कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस पी क्यू अप टू आर सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर. ज्वाइन सी आर. सी आर को हमने ज्वाइन कर दिया. पहला स्टेप हमने क्या किया प्रूफ, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट. ट्रायंगल ए क्यू पी congruent to triangle CQR. This is the first step by SAS rule. हमने क्या कुछ यूज किया, एक तो ये साइड यूज की, इसके इक्वल ये साइड यूज की. कंस्ट्रक्शन दिस इज इक्वल टू दिस वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो एपी हमारा सीआर के इक्वल आ जाए. चलो कॉन्ग्रुएंसी का में ट्रायंगल, हाउ मेनी पार्ट्स आर ट्रायंगल हैव. एक ना, Yes, हाउ मेनी sir. पार्ट्स ट्रायंगल हैव. Sir, six with 6 three parts. sides. Yes, Three very good. angles. 3 sides and 3 angles. We can use any 3 out of these 6 to prove triangles congruent. हमने यहाँ पे 3 parts, AQ, this angle and this side. AQ, angle AQP and PQ. 2 sides and including angle use किया. Remaining एक तो साइड बच गई, 2 एंगल बच गए. ये ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से. तो यहाँ दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट. तो यहां से एपी फर्स्ट थर्ड सी आर सीपीसीटी आ गया. बट एपी यहां पे अब मैं, बट एपी किसके इक्वल गिवन है, सी बीपी के इक्वल गिवन है. सिंगल कट ऑलरेडी लगाया हुआ है मैंने. दिस इज गिवन. इन दोनों इक्वेशन से एपी आल्सो इक्वल टू सी आर, एपी इज आल्सो इक्वल टू बीपी. दैट मीन्स सी आर इज आल्सो इक्वल टू बीपी. सी आर भी बीपी के इक्वल होगा. दिस पार्ट्स, दिस एंड दिस आर इक्वल. जहां डार्क कर दिया मैंने. नाउ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. मैंने एंगल 1 एंड एंगल 2 यहां पे मार्क कर दिया. सीपीसीटी से, क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की थी, रिमेनिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे. 1 और 2 कौन से एंगल हैं, जेड शेप बन रहा है. अगर दो लाइनें पैरेलल होती है, कट करती है, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होता है ना, दैट आर ऑल्टरनेट. बट यहाँ किसी और मेथड से हमने इक्वल प्रूफ किया, क्योंकि लाइंस आर नॉट गिवन पैरेलल. बट एंगल 1 इज इक्वल टू 2, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी. तो देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी आर. अब
पूरी लाइन इसके पैरेलल है, तो इतना पार्ट इसके पैरेलल होगा, दिस वन। नाउ इन दोनों चीजों को उठा के सी आर इज इक्वल बीपी, दैट मीन्स बीपी इज इक्वल टू सी आर लिख सकते हैं, एंड बीपी पैरेलल टू सी आर। तो ये प्रॉपर्टी आ गई हमारी जो मैंने यहाँ पे लिखी थी। वी नो दैट इफ ओनली वन पेयर ऑफ एडजेसेंट, अपोजिट आना था यार, एडजेसेंट कहाँ से लिख दिया, opposite side of a quadrilateral is equal as well as parallel, then quadrilateral is also called parallelogram. तो ये वाला quadrilateral, देखो एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल भी है पैरेलल भी है, तो BCRP क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। therefore BCRP is a पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बन गया बच्चे, तो दूसरा पेयर भी तो इक्वल एंड पैरेलल होगा क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं। then PR is parallel to BC, therefore PR parallel to BC and PR equal to BC। यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, both pairs of opposite sides of a quadrilateral is are equal as well as parallel। देखो एक पेयर का यूज करके हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया, तो ऑटोमेटिकली दूसरा पेयर इक्वल एंड पैरेलल हो जाएगा, हो गया। अब PR टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, कंस्ट्रक्शन किया था हमने, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम PQ। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, 5 5 है, तो पूरे 10 को क्या लिख सकता हूँ, डबल ऑफ PQ लिख सकता हूँ ना, पैरेलल टू BC। अब PR पूरी की पूरी लाइन पैरेलल है, तो इतना पार्ट भी तो इसके पैरेलल होगा, PQ पैरेलल टू BC। PQ, ओ ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ इक्वल था, सॉरी, यहाँ पे PR की जगह PQ पैरेलल टू BC, यहाँ पे इक्वल था, यहाँ लिखना था 2 PQ इज इक्वल टू BC, तो PQ इज हाफ ऑफ BC। ये हमारा थ्योरम है। मतलब कहने का मतलब ये है, चलो मैं अब ना पूछता हूँ थ्योरम अप्लाई करनी है। यस, ABC, M is the midpoint of AC, N is the midpoint of CN, AM is equal to CM and CN is equal to BN। This is given, ये दो पार्ट्स गिवन है। Then we have to apply midpoint theorem। Yes, Kabir, by applying midpoint theorem, what we get? The By result is applying, just let me have a look at the question. CN is equals to B. Okay. Uh, it is a tilted one. So if we'll extend, I think no, we have NN. not to extend here. I see this is a proof of theorem. Yeah. Now we have to apply theorem, not used produce this construction वगैरह, वो तो प्रूफ है, अब उसका नहीं, अब सम के अंदर हमें मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करनी। देन व्हाट आई हैव टू राइट डाउन? Applicability we have not. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम? I'm so sorry, statement you told, but I missed it, I think. Yes, Igna, what is the statement of midpoint theorem? Sir, in any two sides of the triangle. Sir, I know the statement, but like from midpoint of any. बच्चे जब तक स्टेटमेंट नहीं आएगा आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। Sir, like the line What is segment. this? This is a line segment. स्टेटमेंट यहां से शुरू होती है, अ लाइन सेगमेंट। किसको ज्वाइन कर रही है ये लाइन? BC और AC के मिड पॉइंट्स को। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is parallel to third side and equals to half of it. This is a statement. नोट डाउन कर लो जिसने करना है, नहीं तो लर्न कर लो अपने दिमाग में अभी ही फटाफट, क्योंकि जब तक हमें स्टेटमेंट नहीं पता होगा हम अप्लाई ही नहीं कर सकते। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली एक लाइन सेगमेंट जो टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है,
थर्ड साइड के पैरेलल और इक्वल टू हाफ ऑफ इट होती है. तो हियर नाउ कबीर, व्हाट आई हैव टू राइट डाउन? Uh, you can write down like MN is equals to half of AB. एंड MN is MN, also parallel to AB. बस. रीजन मिड पॉइंट थ्योरम ऐसे आएगा. मतलब जब भी हमें दो टू साइड्स के मिड पॉइंट गिवन है, वी हैव टू अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम. फर्स्ट वी मेंशन द मिड पॉइंट्स. EM and CM are equal, CN and BN are equal. Therefore, this is equal to this and this parallel to this. देखो, BC और AC के मिड पॉइंट्स हो गए. ये लाइन तीसरी साइड कौन सी बची? AB. तो MN क्या होगा? पैरेलल टू AB एंड MN इज हाफ ऑफ AB होगा. दिस वन. हमें पूरा प्रूफ नहीं करना, ये प्रूफ एग्जाम में आ सकता है, इसलिए वहां पे आ गया प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम. तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन सारा जो मैंने अभी आज टाइम वेस्ट किया है. ओके. एक्सरसाइज तो हमारी कल ही शुरू होगी, क्योंकि अभी है सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड थ्योरम, थ्योरम नंबर 2, दैट इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. जैसे बच्चे मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट था, वैसे ही कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट भी आना चाहिए. स्टेटमेंट: a line segment joining midpoint of one side मिड पॉइंट थ्योरम में क्या था? मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स को ज्वाइन कर रही थी. यहां पे क्या लिखा है? मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू सेकंड साइड bisects the third side. This is a triangle ABC. This is a line segment PQ. Now, a line segment joining midpoint of one side. Suppose P is the midpoint of AB. Midpoint of one side, that is P is the midpoint of AB. Parallel to second. This parallel to this. Third side. Yes. Shyan, third side कौन सा बचा? सर AC. तो ये लाइन सेगमेंट उसको बाइसेक्ट करेगी. मतलब इफ AP is equal to BP and PQ parallel to BC, these two things are given, then मतलब मिड पॉइंट ऑफ वन साइड गिवन है और पैरेलल टू सेकंड साइड गिवन है, तो वो क्या होगी? थर्ड साइड को बाइसेक्ट. देन ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी. हम ए क्यू को क्यू सी के इक्वल लिख सकते हैं. रीजन इसका क्या आएगा? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. समझे? रीजन क्या आएगा? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ये तो सिंपल एक स्टेटमेंट समझाइए आपको कि स्टेटमेंट में क्या दिया है. अगर ये दो चीजें गिवन है तो हम ये लिख सकते हैं, रीजन आएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. अब इसका मैं प्रूफ करता हूं. ओहो समिति, मैं तो स्टेटमेंट ही भूल गया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की. क्या लिखी थी मैंने? Sir, yes, a line joining midpoint of one side is parallel to the second side and it bisects the third side. वेरी गुड. मैं स्टेटमेंट फिर से लिख रहा हूं. श्यान, स्टेटमेंट फिर से Yes, बोलो. sir. The line segment joining midpoints of any two ना sides. ना 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 ना, कन्वर्स की स्टेटमेंट बेटा. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट की टू साइड के मिड पॉइंट को थोड़ा ज्वाइन करती है. वो तो मिड पॉइंट थ्योरम में होता है ना. लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग midpoint of one side parallel to second side bisects the third side.
दिस इज अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट समझ आया बच्चे? नाउ ए बी सी, P is the midpoint of AB. PQ is parallel to BC. Given, जितने बच्चे नोट डाउन करनी है नोट डाउन कर लो ये थ्योरम्स। ठीक है, बाकी मैं इसका स्नैप खींच के ग्रुप में भी डाल दूंगा दोनों थ्योरम्स का, क्योंकि इसको तो रट्टा मारना ही मारना है हम। AP is equal to BP, PQ parallel to BC. These two things are given. What we have to prove? It bisects third side. That is, we have to prove AQ is equal to QC. Proof, कंस्ट्रक्शन पहले देखो, उसमें हमने बाहर की थी, यहां पे हम अंदर कर लेते हैं। वहां इक्वल प्रूफ कंस्ट्रक्शन की थी, यहां पैरेलल कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन थ्रू क्यू, ड्रॉ क्यू आर पैरेलल टू पीबी, क्यू आर पैरेलल टू पीबी इंटरसेक्ट्स बीसी एट आर, बीसी एट आर। बस प्रूफ में बच्चे इस क्वाड्रिलेटरल में आ जाओ। अब देखो, ये साइड इसके पैरेलल है, यस और नो? पृष्ठी पैरेलल है, वाई रीजन? PQ is parallel to BR. What is the reason here? Yes, Kabir, what is the reason here? Yes, it is mentioned. I think you've mentioned. This is given. Yeah, given. This one. PQ, yes, Prishti, PQ is parallel to BC ना बच्चे? Then इतना part इसके parallel होगा कि नहीं होगा? This is parallel. QR is parallel to PB. Yes, Prishti, इसका reason? So it is also given. No, this is construction. Oh, no. ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो मार्क्स कट कर लेती हैं, और रीजन लिखना कंपल्सरी होता है। मतलब कई टीचर छोड़ देते हैं कि चलो छोड़ो रहने दो बच्चा के मार्क्स ना काटो, बट अगर मैं मेरे पास पेपर आएगा तो मैं जरूर काटूंगा। और 50% टीचर ऐसे होते हैं जो काटते हैं मार्क्स, जिनको नॉलेज है। जिनको नॉलेज नहीं है वो नहीं काटते, वो तो कहते हैं चलो चलने दो। अब ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, तो ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन गया? पैरेललोग्राम। वी नो दैट इफ, बाकी ना ये जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं, जब हम रेक्टिलिनियर फिगर चैप्टर करेंगे तब आपको प्रॉपरली ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। हाँ, वहां पे लिखा था, क्यों लिखा था। यू नो दैट इफ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, अब देखो बोथ बोथ पेयर लिख दिया ना मैंने। अब अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, देन इट इज आल्सो कॉल्ड पैरेललोग्राम, आल्सो कॉल्ड पैरेललोग्राम। देखो मैंने सिर्फ पैरेलल का यूज किया पैरेललोग्राम बनाने के लिए, तो क्यू आर इज इक्वल टू पीबी आ जाएगा। एक ना, व्हाट इज द रीजन हियर? व्हाई क्यू आर इज इक्वल टू ए बी पीबी? So because it's like a parallel, it like automatically becomes equal because it's a या मैं parallelogram. ऑटोमेटिकली लिख दूं? No, sir. नहीं बच्चे, एग्जाम में क्या लिख के आएंगे हम? अब वो बताओ ना मुझे, We क्या प्रूफ? know that since it's a parallel, oh, okay, opposite sides of a parallelogram are equal. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये रीजन लिखना है। क्यू आर इज इक्वल टू पीबी।
बट पी बी किसके इक्वल गिवन है हमें? एपी के. What we get from these two equations, Samiti? What do we get from these two equations? Sir, we get that uh, QR is equal to 9. QR is equal to AP. सिंपल. देखो पीबी क्यू आर के भी इक्वल है, पीबी एपी के भी इक्वल है, तो ये दोनों पार्ट्स भी तो आपस में इक्वल होंगे. हम तीन जने हैं. सपोज समिति, एकना एंड सृष्टि. सर स्पेलिंग गलत सृष्टि सृष्टि ले लेते यार, कोई बात नहीं. सृष्टि, इसके इन दोनों के अमाउंट इक्वल है. समिति के पास जितने रुपीज हैं उतने ही एकना के पास हैं. मान लो समिति के पास 50 है, एकना के पास भी 50 है, तो इनके दोनों के अमाउंट इक्वल है ना. अब उन्होंने बोल दिया एकना और पृष्टि के भी इक्वल है, तो पृष्टि के पास कितने होंगे? 50 होंगे. तो यहां से यही चीज होगी ना कि ये एकना जो है वो कॉमन हो गया. एकना की मनी समिति के भी इक्वल है, एकना की मनी पृष्टि के भी इक्वल है, तो इन दोनों की मनी भी तो आपस में इक्वल हो गई. सेम हियर, पीबी क्यू आर के भी इक्वल है, पीबी एपी के भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे ना. हमें लिखना इस वे से होता है कि दिस इक्वल टू दिस आ गया, बट जो पीबी है वो एपी के भी इक्वल है. तो देयरफॉर या तो हम दो तरीके होते हैं इसको लिखने के, इक्वेशन वन इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, या हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है. अंडरस्टूड? क्यू आर इज इक्वल टू एपी आ गया, ये लाइन इस लाइन के इक्वल आ गई. ये लाइन में इस लाइन की इक्वल प्रूव कर चुका हूं. ये रही. मैंने फिगर क्योंकि ना यहाँ थोड़ा सा ज्यादा हो गया था इसलिए यहाँ बनाई है, और मुझे ये है कि यहाँ नीचे दिख भी जाएगा आपको. ये एंगल, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल थी, ये लाइन इसके पैरेलल थी, एंगल वन एंगल टू के इक्वल है. यस कबीर, व्हाई दीज टू एंगल्स आर इक्वल? I Okay. have write down one. Here I have write down two. Yeah. Why these two angles are A equal? detailed reason would be because AC is a straight line and AB and QR are parallel. Reason. This is not the reason. Uh, ये तो condition है. yeah. This is a transversal. This parallel to this, and this is a transversal. This is a condition, not the reason. So we were being taught this only, so I think that this should. Geometry part, your geometry part is too weak, है ना? Geometry part, yeah. We were being taught like that Okay. only. श्यान, वन एंड टू एंगल कौन से हैं? सर अल्टरनेट एंगल. जेड बन रहा है बेटा. हाँ जेड जेड शेप बन रही है वन और टू की, नहीं बन रही. ये एंगल कौन से एंगल होते हैं? यस सृष्टि, corresponding angles. वेरी गुड. अब देखो दो लाइंस ऐसे हैं, एक कट कर रही है, तो ये एंगल इसके इक्वल, यही सेम कंडीशन हो गई ना. तो दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. सेम मेथड, एंगल थ्री आई हैव राउट डाउन हियर फोर. थ्री एंड फोर आर इक्वल. सेम, दिस पैरेलल टू दिस एक्ट एज ट्रांसवर्सल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है कबीर? Yes, understood. Just got the new name for it. अब ये दोनों ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट करनी. इन ट्राइंगल्स एपी क्यू एंड क्यू आर सी, ऑर्डर इज मस्ट. इसका बच्चे एंगल थ्री एंगल टू के, सॉरी, एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल, एंगल वन एंगल टू के इक्वल. दोनों का इकट्ठा रीजन लिख देंगे हम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंड एपी इज इक्वल टू क्यू आर. दिस इज प्रूव्ड अबव. ये रहा, वी हैव प्रूव्ड.
तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच रूल? बाय ए ए एस। देखो एक ट्रायंगल छुपा लो, दो एंगल्स आर यूज हो रहे हैं एक साइड, ए ए एस रूल। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो ए क्यू फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड क्यू सी के इक्वल, सीपी सीटी, और यही हमें प्रूव करना था। समझ आ गया? चलो आज का अब एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा। पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, ए बी, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ए आर एंड ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। मतलब हमें गिवन क्या है, इफ पी ए इज इक्वल टू ए आर एंड ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये दो कंडीशन है। देन सबसे पहले तो ये बताओ, एक ना कौन सा Yes, थ्योरम अप्लाई होगा, मिड पॉइंट और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट? the converse of midpoint theorem. Yes, because only one side midpoint is there parallel to second side. Oh, Igna, I forgot the statement of the theorem. The line joining The midpoint. line को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, दा लगा रहे हो आगे। Okay, हाँ line joining midpoint. A line joining midpoint of. So one second. A line joining midpoint. Of a लाइन नहीं side बोलना, of a. लाइन नहीं बोलना, लाइन सेगमेंट बोलना है, Okay, ठीक है? sir. Line segment. Yes, sir. A line segment joining midpoint. Um, और of वन साइड, of one side of a triangle and is parallel to the second side of a triangle bisects the third side. ट्रायंगल वर्ड एक बार ही डाल दो बस, दो बार डालने की जरूरत नहीं है। A Yes. line segment joining midpoint of one side of a triangle parallel to second, then it bisects the third side. तो हम रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, बी आर इज इक्वल टू क्यू बी, या क्यू बी इज इक्वल टू बी आर। रीजन कन्वर्स, मतलब जब भी इस तरह की कंडीशन कहीं पे भी आएगी, हमने ऐसे दो लाइनों में खत्म कर देना है, वहां पे प्रूव नहीं करना, वहां पे ऐसे ही, मतलब पहले तो ट्रायंगल मेंशन करना है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, दीज टू थिंग्स आर गिवन, सपोज मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ गिवन है, देन हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं, दिस इज आर रिजल्ट। चलो R is the midpoint of AC, S is the midpoint of BC. Then, Kabir, which theorem is applicable here? Yeah, the midpoint theorem would be applicable here. Then result is, Uh, the result is that RS is the half of AB. पहले parallel लिखा करो, Yeah, parallel also in the half of. and RS is also half of AB. तो ये रिजल्ट हम सीधा लिख सकते हैं, रीजन मिड पॉइंट थ्योरम, बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट थ्योरम। दोनों थ्योरम समझ आ गई, मिड पॉइंट थ्योरम भी और वो भी। इसके बाद बच्चे है इंटरसेप्ट थ्योरम, मतलब प्रॉपर्टी है वो, अब प्रॉपर्टी बस वो उसकी तो स्टेटमेंट ही याद कर लेना, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। इफ अ ट्रांसवर्सल, फिगर में बाद में बनाऊंगा, मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद थ्री और मोर पैरेलल लाइंस, then other transversal also makes equal intercepts. If a transversal makes equal intercept with three or more parallel lines, then other transversal also make equal intercepts. Three or more, these three lines are parallel. एक ट्रांसवर्सल है, ए बी सी से कट कर रही है,
यहाँ पे इंटरसेप्ट, पृष्ठी, इंटरसेप्ट का मीनिंग पता है? इंटरसेप्ट पता है क्या होता है? इस फिगर में इंटरसेप्ट कौन सा है? These three lines PQ, RS, and MN are parallel. ACs are transversal. Then which are the intercepts here? ट्रांसवर्सल कौन सी है? The AM, ABC, जो like एसी, एबीसी नहीं, एसी बोलो। AC. हाँ. ठीक है, एबीसी भी ठीक है वैसे, पर एसी बोलो। 2 पॉइंट। दिस पार्ट जो मैंने डबल कर दिया, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। इफ अ Yes. ट्रांसवर्सल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, मींस ये तीनों लाइंस पैरेलल और ये इसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी है। कोई और ट्रांसवर्सल है, जैसी मर्जी है, चाहे इसको ऐसे कट कर रही है, चाहे ऐसे कट कर रही है, ऐसे ले लिया मैंने, यहां ले लिया डी ई एफ, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन है, देन डीई इज आल्सो इक्वल टू ई एफ। रीजन इज इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी या थ्योरम। ये स्टेटमेंट में सारा कुछ लिखा है, देखो। अगर स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझो ना, मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट में भी सब कुछ लिखा है, कन्वर्स में भी सेम है, अब इसमें इक्वल इंटरसेप्ट में भी जैसे है वैसे ही हमने रिजल्ट अप्लाई करना होता है। इफ अ ट्रांसवर्सल मेक इक्वल इंटरसेप्ट विथ 3 or more पैरेलल लाइंस, then other transversal also makes equal intercept, means if AB BC के इक्वल है, then E is equal to EF। ये भी ट्रांसवर्सल है बेटा, GI, देन ये इसके इक्वल है, देन दिस इज आल्सो इक्वल टू दिस, मतलब GH इज आल्सो इक्वल टू HI। और कोई ट्रांसवर्सल है, दिस पार्ट इज आल्सो इक्वल टू दिस, ऐसे कट कर रही है, दिस पार्ट इज आल्सो इक्वल टू दिस, ऐसे कट कर रही है, दिस पार्ट इज आल्सो इक्वल टू दिस। मतलब एक ट्रांसवर्सल अगर इक्वल बना रही है ना, तो रिमेनिंग सारी ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बनाएंगे जो इन तीनों लाइंस को कट करेंगे। समझे बच्चे? दिस इज कॉल्ड इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी। बस आज का होमवर्क आपका यही है कि दोनों थ्योरम्स के आपने प्रूफ करने हैं, बाकी लिखने हैं। इसके मैं पिक्चर्स दोनों थ्योरम जो प्रूफ किए हैं बेटा, वो आपको भेज देता हूँ, स्नैप खींच के भेज देता हूँ ग्रुप में। चाहे देख के लिख लो, उसके बाद समझो, फिर बिना देखे लिखो। ओके? स्टेटमेंट्स कल मैं पूछूंगा, और जिसने ना बताया ना, तो उसकी सिटी में आ जाऊंगा चांटे लगाने के लिए। ठीक है? अब देखो मैं किस किस के पास जा सकता हूँ। सायोना के पास जा सकता हूँ, आ जा ही नहीं। मुंबई घूम सकता हूँ। कबीर के पास जाके मैं देहरादून घूम सकता हूँ, है ना? मसूरी भी घुमा देगा? Sure, sir. नहीं, मैं देहरादून भी आया हूँ, मसूरी भी घूम के जा चुकी है। Right. मुझे ना वहाँ पे रास्ते में देहरादून से मसूरी जाते वक्त सिर्फ एक बढ़िया चीज लगी, मैगी पॉइंट। Okay. Yeah, there are numerous Maggie points. अब तो बहुत हैं, पहले ना एक दो होते थे, काफी टाइम हो गया मुझे। मतलब मैं तो नियर अबाउट 7-8 का आया हुआ हूँ, 2007 Okay. 2008 में। तब एक ही होता था। वो क्या Yeah. था, नीचे ना साथ में सीढ़ियां बनी हुई थी, नीचे पहाड़ों पे जाके बैठ के टेबल लगे हुए थे, वहां पे खाओ मजे से। Yeah. ये था। पर देहरादून में मुझे अच्छा लगा था रॉबर्ट्स केव्स। Okay. Okay. गए हो वहां पे? Not particularly that area, but yeah, zoo is there, and particularly in the view of from Mussoorie to Dehradun. That's perfect at night, particularly. वो भी अच्छा लगा था, क्योंकि वहां पे भी ना पानी में पैर होते हैं और मैगी वहां पे मिल जाती है। Yeah. इंटरेस्टिंग। चलो, आपने ये याद करनी है बेटा, दोनों थ्योरम्स को लिख के देखना है, Sure. क्योंकि जब तक ये थ्योरम्स नहीं आएंगे चैप्टर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा।
Understood. चैप्टर 0 होगा जब तक ये थ्योरम्स अप्लाई करनी नहीं आएंगी। ठीक है सृष्टि? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे। सर आप अपलोड नहीं करोगे वीडियो? हाँ हाँ करूंगा बेटा, अभी कर देता हूँ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके बाय। Okay, bye, sir. Thank you so much. सॉरी, टुमारो टाइमिंग, Yeah, yes. टुमारो मॉर्निंग 10 AM, सेम संडे का। Sure. ठीक है, टुमारो मॉर्निंग टाइम 10 AM एंड इवनिंग टाइम 8 PM। संडे वी हैव टेकन 2 क्लासेस। Okay. ओके बेटा, बाय।